और अब ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, सदन की कार्यवाही की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। एक तरफ आप लोकसभा की तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आज सभी की इसी बात पर निगाह है कि आज का दिन कितना अहम। 81 श्री जी लक्ष्मी नारायण। थैंक यू स्पीकर जी। माननीय मंत्री जी। सर, क्वेश्चन नंबर 81, the details of the total number of centers of excellence for skill development established सभापति जी, प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर। sectors they focus on. The details of the number of COEs operational in coach each state district wise. The details of the number of beneficiaries trained by the COEs in each state, including the details of placements of employees outcomes. The details of the financial outlay for establishing and maintaining these COEs along with the funding pattern followed for their operation, whether government funded, public, private partnership, etc. Whether there are any proposals to expand or establish additional COEs in the future across the country, especially in Andhra Pradesh, sir. And if so, the details thereof, and if not, the reasons thereof. Thank you, sir. Thank you, sir. I congratulate the Member of Parliament on asking me a very pertinent question. Andhra Pradesh government has taken substantial steps and given a lot of credence and recognition to the space of skilling. I'd like to inform the House and the Honourable Member that the entire system of giving national recognition to centres of excellence is designed to bring more visibility to impactful, credible institutions. We are providing a national recognition to these institutions. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship issued guidelines with this regard in 2019. A total of 6 COEs have been recognized, given that status by the ministry. But apart from this, a total of 202 centers of excellence have been established with the help of our sector skill councils. The 36 sector skill councils, as you know, are the principal bodies where we involve industry. In fact, these organizations are led by industry and they work in coordination under the ministry as well. Sir, out of the 202, because the Honorable MP asked me about Andhra Pradesh, a total of 8 centers of excellence have been established in Andhra Pradesh. Thank you. Supplementary. Sir, my constituency Anantapur receives sunlight all around the year, sir, and it is home to Dr. Malika Nadda, his spouse, a distinguished professor, is deeply committed to advancing the welfare of especially abled children, championing their rights and opportunities for a better future. She is the president of Special Olympics Bharat, and in May 2024, she was appointed as the chairperson of Asia Pacific Advisory Council of Special Olympics. ask the minister, is there any plan to establish a center of excellence for skill development and R&D in renewable energy in Anantapur to create a green workforce and strengthen the clean energy system, sir? Thank you. I thank the Honourable Member. It is true that Andhra Pradesh is a leader in the space of technologies with regards to green jobs. The Honourable MPs asked me specifically about the green job sector. I'd like to inform him that out of the 36 sector councils, one of our councils relates specifically to the space of green jobs. And there is a lot of potential. For instance, the PM Surya Ghar Muft Bijli scheme is targeting 1 lakh jobs. Our ministry is working in coordination with ministry and the scheme. Under PMKVY 4, we are targeting to create a large number of jobs under the scheme. The Green Hydrogen Mission targets 6 lakh jobs in the value chain, and 50,000 OJT training is also targeted by the mission. Likewise, our ministry is working in consonance with that scheme as well. Sir, our Green Sector Council has trained 5,82,579 candidates in the space of solar energy, waste management, wind energy, green hydrogen, small hydro, and other green jobs. The
honorable MP has asked specifically with regards to setting up a center of excellence in the state of Andhra Pradesh. I would recommend that the honorable MP can work with the state government, can identify credible institutions that are active in that space and can recommend the same to my ministry. We will follow due process. माननीय सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, इस वक्त आप तस्वीर देख रहे थे। जैसी आज भी कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद तुरंत यहां पर विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ संबल मुद्दे को लेकर, और इसके अलावा विपक्ष की तरफ से संविधान दिवस को लेकर चर्चा की मांग की गई। और ऐसे में आज फिर से लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू होती है हंगामे के साथ, और अभी अपडेट ये इस वक्त आपके सामने, कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है 12 बजे तक के लिए। देखिए, आप देखिए, अगर आप शुरुआत से ही देखेंगे तो पिछला हफ्ता भी कुछ इसी तरह से रहा है, जब पहला हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। और आज एक बार फिर से जैसे ही सत्र की कार्यवाही शुरू हुई लोकसभा के अंदर, वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। संबल मुद्दे सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने आज फिर से काफी ज्यादा हंगामा किया, और इसी वजह से अब यहां पर लोकसभा की जो कार्यवाही है उसको स्थगित कर दिया गया है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने आज फिर से संसद में काफी हंगामा किया, और इसी वजह से 12 बजे तक के लिए लोकसभा की जो कार्यवाही है उसको स्थगित कर दिया गया है। संभल मुद्दे को लेकर और साथ साथ कुछ अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष एक बार फिर से काफी ज्यादा हंगामा करता हुआ, चूंकि आज का दिन बेहद अहम, और आज ये माना जा रहा था कि कई विधेयक पेश हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आज भी सत्र की शुरुआत होती है विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई 25 नवंबर से ही, उसके बाद से ही आप देख रहे हैं कि पहला हफ्ता इसी तरह से गुजरा है। विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा हो रहा है, और इसी वजह से पहला हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया था। और आज उम्मीद इसी बात की थी कि आज शायद कई विधेयकों को यहां पर पेश किया जाए, कई मुद्दों पर यहां पर सार्थक चर्चा हो पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है उसके तुरंत बाद यहां पर विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो जाता है। विपक्ष ने आज एक बार फिर से इसी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसकी वजह से हो अल्लाह के बीच यहां पर अभी अपडेट ये कि लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया है 12 बजे तक के लिए। अब कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से जैसे ही शुरू हुई वैसे ही सदन में हंगामा शुरू हुआ। My name, serial number 7, in the revised list of business for today. श्री पंकज चौधरी। सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से सभा पटल पर निम्नलिखित अधिसूचना संख्या 29/2024 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 30/2024 केंद्रीय उत्पाद शुल्क हिंदी और अंग्रेजी संस्करण दिनांक 2 दिसंबर 2024 की प्रति प्रस्तुत करता हूं, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ, जिसके द्वारा कच्चे पेट्रोल उत्पाद और एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को हटाने, मोटर स्पिरिट जैसे जिसे सामान्यतः पेट्रोल कहा जाता है और हाई स्पीड डीजल ऑयल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को हटाया जा रहा है। उपरोक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी। Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, श्रीमती रंजीत रंजन। तो देखिए, एक तरफ हम आपको ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा की जो कार्यवाही है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। अक्षय इस वक्त हमारे से जुड़ रहे हैं। अक्षय, कम से कम आज तो उम्मीद थी कि कई विधेयक पेश होंगे, सार्थक चर्चा होगी, लेकिन आज फिर से वही तस्वीर जो पिछले पूरे हफ्ते हमने देखी कि किस तरह से विपक्ष ने हो हल्ला किया। आज भी जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई आज फिर से वही तस्वीर दिखी। देखिए, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, लेकिन विपक्ष ने पहले ही नोटिस दे दिया था और इसकी पूरी संभावना थी कि लोकसभा में जिस तरह से नोटिस दिए गए हैं कांग्रेस और विपक्षी दलों की तरफ से अडानी इश्यूज को लेकर के निश्चित रूप से हंगामा होगा, और ऐसा ही कुछ हुआ। विपक्ष ने
जाते ही हंगामा शुरू कर दिया और इस पूरे मसले को लेकर के केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने ऑलरेडी स्पीकर से मुलाकात की थी और उनसे अपनी डिमांड रखी थी कि हम चर्चा चाहते हैं। उनको बात ये शायद नहीं समझ पाई, इसलिए हमने फैसला किया है कि अब जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम सदन को इस तरह से नहीं चलने देंगे। और साफ तौर पर है कि 12 बजे तक लोकसभा स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन लगता है कि वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पर भी 267 के तहत तमाम नोटिस दिए गए हैं। कहा जा सकता है कि पिछले कई दिनों से संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कार्रवाई के नाम पर नीलबटा सन्नाटा है। कहीं न कहीं अब सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने बैठ करके ये बात सुलझानी होगी कि अगर सदन नहीं चलेगा तो जनता का कितना नुकसान होगा, क्योंकि कई विधेयक पेश किए जाने हैं और उन विधेयक निश्चित रूप से जनता से जुड़े हुए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर लोगों का ही नुकसान होगा। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके जो उनका रूम है उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम फ्लोर लीडर्स की बैठक भी हुई थी और उसमें तमाम रणनीति बनाई गई थी। ये माना जा रहा है कि ईवीएम और अडानी इंस्टीट्यूट को लेकर के विपक्ष अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और अब कह सकते हैं कि एक चुनौती बढ़ती जा रही है। हालांकि आज एस जयशंकर को अपना चीन पर लोगों को संबोधित भी करना है सदन में, लेकिन अब किस तरह से वो संबोधन होगा उस पर सभी की नजर रहने वाली है। फिलहाल 12 बजे अब जब कार्रवाई शुरू होगी तो देखना दिलचस्प ये होगा कि तस्वीरें ऐसी ही रहती हैं या कुछ उसमें बदलाव दिखता है। जी, लेकिन अक्षय, अगर हम इसी सत्र की बात करें, 16 विधेयक हैं जिन्हें इस बार लिस्टेड किया गया है और अभी तक तो इन बिलों को लेकर चर्चा ही नहीं हो पाई है। और अगर इसी तरह से हंगामा होता रहेगा, इसी तरह से विपक्ष का रुख रहेगा, तो फिर कैसे चर्चा होगी इन बिलों को लेकर? जी, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि 16 बिल पहले रखे गए थे। अब एक जो जेपीसी का है वो विधेयक नहीं आएगा तो 15 विधेयक को पास कराना है और चुनौती अब सरकार के सामने यही है कि अगर चर्चा नहीं होगी तो विधेयक कैसे पास होंगे। क्या सरकार इस स्थिति में है कि वो बिना चर्चा कराए विधेयक को पास कर सकती है? हालांकि अभी सेशन में समय है, इसलिए अब सभी की नजरें रहेंगी कि किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है कि सदन बहुत सुचारू रूप से चल पाएगा फिलहाल। इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जो अगर देखा जाए किरण रिजिजू की तो वो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि उन्होंने पहले ही कहा था कि विपक्ष को हम आमंत्रित करते हैं कि अगर आपके पास कुछ इश्यू हैं तो आप लाइए, लेकिन चर्चा कीजिए। लेकिन विपक्ष 2-3 मसलों को लेकर के, खास करके अडानी इश्यूज को लेकर के, ईवीएम इश्यूज को लेकर के लगातार शोर शराबा कर रहा है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा पूरे संसद को भुगतनी पड़ रही है। जनता की पैसे की बर्बादी हो रही है फिलहाल। जाहिर तौर पर अक्षय, अगर इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा भी करनी है तो सार्थक चर्चा कम से कम होनी चाहिए। और जैसा फिर सत्ता पक्ष शुरू से ही आरोप ये लगा रहा है कि विपक्ष की मंशा ही नहीं है चर्चा करने की, और विपक्ष का अब जो रुख है वो तो फिर सत्ता पक्ष की इस बात को पूरी तरह से साबित भी कर रहा है कि वाकई विपक्ष चाहता ही नहीं है कि चर्चा हो, विपक्ष की मंशा ही नहीं है इस तरह की। और देखिए, विपक्ष निश्चित रूप से जिस तरह शोर शराबा कर रहा है वो सवालिया निशान उनके मंसूबों पर खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ी चीज रही है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, उनके मंसूबे क्या हैं, वो सदन को क्यों नहीं चलना देना चाहते हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कई मसलों को लेकर के सवालों के घेरे में विपक्ष रहा है और जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं वो सही नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है कि सदन को सही तरीके से चला सके, लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा जरूर है कि अगर सदन नहीं चलेगा, कार्रवाई नहीं होगी, विधेयक पास नहीं किए जाएंगे तो फिर किस तरह से वो कानून के रूप में तब्दील हो पाएंगे। विपक्ष को ये सोचना होगा कि सरकार कोशिश कर रही है बेहतर तरीके से सामंजस्य बैठा करके कि आगे बढ़ा जा सके और कोशिश पहले भी की गई थी। जैसे कि सदन शुरू होना था उससे पहले ही विपक्षी दलों की बैठक, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें किरण रिजिजू ने सभी से सहयोग करने की अपील की थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि वो चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो सके, लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन की जगह पर डिस्ट्रक्टिव जिस तरह से डिस्ट्रक्शन लगातार बढ़ रहा है वो विपक्ष के मंसूबों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि आखिर विपक्ष के मन में क्या है।
जी ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया। देखिए आज भी हमने वही तस्वीर देखी कि स्पीकर कई बार विपक्ष से अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष ने एक भी नहीं सुनी और इसी तरह से हंगामा यहां पर होता रहा।